إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کے حمد و ثنا اور تمام قسم کی بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اس کائنات کو ایک مکمل اور بہتر نظام کے ساتھ بنایا اور اس میں ہم انسانوں کو سب سے بہترین ڈھانچے اور صورت احسن تقویم میں پیدا فرمایا، اور اس لیے پیدا فرمایا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن تقویم ہے احسن عمل پیش کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کائنات کے سب سے بہترین طبقے انبیاء کرام پر درود و سلام اور نبیوں خصوصاً نبیوں کے سردار جن کے تمام اعمال سب سے بہتر تھے، ان پر اللہ کی طرف سے ہماری جانب سے بے انتہا درود و سلام نازل ہوں، اور اللہ رب العالمین انہیں مقام محمود تک ضرور پہنچائے۔ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، سورہ 3 پڑھتے ہوں گے بار بار، اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، اور سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کرنے کے بعد ویسے بھی اندازہ ہوگا اور تجربہ ہوگا کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ سوچ رکھنے والی اگر کوئی مخلوق ہے تو انسان ہوتی ہے۔ اپنے ہر معاملے میں انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے بھی فرمایا کہ تم کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ آزمائے کہ سب سے اچھے عمل لے کر کون آتا۔ عمل تو سبھی کرتے، عمل تو
सभी करते हैं, जिंदा जितने लोग हैं, और मुर्दे क्या अमल करते हैं हमको आपको उसकी खबर नहीं, तो उसको देखा ही। तो जितने भी जिंदा अमल करते हैं और जितने ज़हीन है वो भी अमल करते हैं। अमल से कोई बरी नहीं, लेकिन उन अमाल में अल्लाह चाहता है सबसे बेहतर अमल करके लाओ। अब यहाँ ये नुक्ता भी ध्यान में रहे कि सबसे ज्यादा अमल करके लाओ नहीं, तो अल्लाह का कि बहुत ज्यादा लेकर के आओ, अच्छा लेके आओ। इसीलिए हम और आप दुनियावी मामले भी कहते हैं घर बनाओ भाई छोटा, तो अच्छा बनाओ, जरा मुनासिब जगह बना लो, आबो हवा खुली फजा में बना लो, रोशनी मिले, हवा मिले। दुनिया के तमाम मामलात में हम बेहतर से बेहतर की तलाश में। अगर अल्लाह ने तौफीक दे रखी है, ताकत दे रखी है, कपड़ा सिलाना हो तो क्या कहते हैं, अच्छा टेलर कौन सा है, कौन सा टेलर अच्छा, जरा बेहतर कपड़ा सिल दे, कटिंग अच्छी हो, गड़बड़ ना करता हो, फिनिशिंग अच्छी हो, तो सारी चीजें तलाश करते हैं। घर बनाना हो, मिस्त्री कौन सा अच्छा है भाई, कौन मटेरियल खराब नहीं करता, कौन सीधी दीवार जोड़ता है, प्लास्टर कौन अच्छा करता है, सारी मालूमात लेते हैं। बच्चे को स्कूल भेजना हो तो मालूमात लेते हैं कौन सा स्कूल सबसे अच्छा है, कहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, ट्यूशन लगाना तो ट्यूटर कौन सा अच्छा है जो इंफरादी तौर पर तवज्जो देता है, हर जगह अच्छे से अच्छा तलाश। लेकिन यहाँ मामला जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का नमाज पढ़ने गए तो पढ़े ना 2 रकात, कैसी पढ़े उसकी फिक्र नहीं, पढ़े बस, इसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तायीद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, वो अल्लाह जिसने आसमानों जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। कितने दिनों में? 6 दिनों में। वकाना अर्शुहु अलल मा, जब 6 दिनों में पैदा किया उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। क्यों ऐसा किया 6 दिन में? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में सबसे अच्छे अमल करने वाला कौन। अगर गौर करेंगे तो इस आयत से भी ये बात साबित होती है कि इत्मीनान से काम करना चाहिए ताकि अमल अच्छा बन सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में आपने बारहा सुना होगा कि इज़ा अरादा शय्यन यक़ूल लहू कुन फयकुन, जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो कहता हो जाओ, वो चीज हो जाती है, वक्त नहीं लगता, सिर्फ उसका एक हुक्म हो कुन, हो जा, और वो चीज फौरन होके तैयार हो जाती, वक्त नहीं लगता। लेकिन अल्लाह ने 6 दिन लगाए। आसमान और जमीन की पैदाइश में कितने दिन लगाए? 6 दिन। क्यों? ताकि बंदे को ये एहसास हो कि अगर वो 2 रकात 1 मिनट में पढ़ सकता है, बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, देखा होगा, वाकयात भी सुने होंगे कि रात भर में 1000 रकातें पढ़ते थे, सुने हैं कि नहीं? 1000 रकातें 1000 मिनट होते नहीं, रात भर में पढ़ेंगे इतनी तेज रफ्तारी से। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6 दिन में पैदा फरमाया ताकि इंसान ये शऊर पैदा करे इस आयत के वास्ते से कि वक्त भले लगे, लगाओ मगर बेहतर करो काम। आप जिस बिजनेस में हैं, फर्ज कीजिए लकड़ी के बिजनेस में, दरवाजा आप साफ सुथरा बना के डाले, फिनिशिंग अच्छी ना हो, तो कितने लोग आएंगे आपके खरीदने? फिनिशिंग अच्छी ना हो, लकड़ी खराब लगा दे और मार्केट में शोहरत मिल जाए, साहब अच्छी लकड़ी नहीं रहती, यहाँ हजरत की फिनिशिंग अच्छी नहीं है, टेढ़ी बनाते हैं, कौन आने वाला? इंसान नहीं आने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सबसे पाकीज़ा जात है। हदीस में है अल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत पाकीज़ा है, और जो चीजें पाकीज़ा ना हो उन्हें कबूल ही नहीं करता, बहुत पाक चीजें कबूल करता। हमने और आपने भी देखे, अगर कोई बहुत हसास तबीयत का मालिक है और नाली के करीब से गुजरा हो तो नाक पकड़ लेता, रुमाल रख लेता, लेकिन जिनका मिजाज बना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या समझते हैं, जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी पाकीज़ा शख्सियत दी है कि गंदगी के करीब से गुजरे तो आंखें मोड़ लेता है, नाक पर रुमाल रख लेता है ताकि उसकी गंदगी की बू से परेशान ना हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना पाकीज़ा होगा, बहुत पाकीज़ा। इसीलिए तौहीद में अगर मामूली भी खराबी पैदा हो जाए
اللہ قبول نہیں फरमाता, नहीं कबूल फरमाता. इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी में फरमाया, अना अगना शुरका अन शिर्क, मैं जितने भी साझीदार हैं उन तमाम साझीदारों में, तमाम पार्टनरों में सबसे ज्यादा पार्टनरशिप से बेनियाज हूं. किसी की पार्टनरशिप की मुझे जरूरत नहीं है. इतना पाकीज़ा है कि किसी की सझियारी उसे पसंद नहीं, इतना पाकीज़ा. इसीलिए उसने कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तुम्हें इस कायनात में इसलिए पैदा किया ताकि हम आजमाएं कि अच्छे अमल लेकर कौन आता है. ढेर अमल लेकर कौन आता नहीं, अच्छे अमल लेकर कौन आता है. 2 ही रकात पढ़ी, मगर इतने खुलूस के साथ पढ़ी है कि वो 2 रकात बहुतों के कई साल की इबादतों पे भारी पड़ जाने वाले. तब वो अच्छी है. एक ही लुकमा खाया, लेकिन इतना अंडा खाया कि उंगली चाटते चला गया कि हाँ साहब क्या खाना बना. ढेर हमने लगा दिया सड़े हुए चावल का, कितने लोग खाएंगे. अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अच्छा अमल चाहिए, अच्छा. और ये दीन इतना प्यारा है कि इसने हर मामले में अच्छे अमल का मुतालिबा किया, हर मामले में. यहाँ तक कि आपस में झगड़े हो जाए तो भी झगड़ा अच्छे ढंग से. कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाती है इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन, किसी से झगड़ा हो जाए तो उसको बेहतरीन ढंग से टालो. गाली गलूज के साथ नहीं कि आइंदा फिर कभी सामना हो जाए तो देखना पसंद ना करें. अच्छे ढंग से अहसन का लफ्ज यहाँ भी इस्तेमाल किया. यही तरीके से आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि और वाज़ेह तौर पर वजादिलहु बिल्लती हिया अहसन, जादला युजादिलु में झगड़ा करने, बहस मुबाहिसा करना. झगड़ा करो, बहस मुबाहिसा करो तो अच्छे अहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जो एक बाशऊर और अखलाकमंद इंसान का तरीका होता है उस तरीके से. एक तो ये होता है कि आदमी पहले ही लफ्ज में बिल्कुल मादरजात बरहना हो जाता है, ऐसी ऐसी गालियों को उतर आता है कि सुनना लोग पसंद नहीं करते. और एक तरीका ये भी होता है कि आदमी कितना भी गुस्सा हो लेकिन गुफ्तगू इतनी सलीके से करेगा कि महसूस ही नहीं होगा कि हाँ साहब ये गाली देने को उतारू. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखिए. एक मरतबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कमरे में, हुजरे में बैठे हुए. उसने बाहर से आवाज लगाई कि मैं आपसे मिलने आया हूं, इजाजत दीजिए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि कितना ही बदतरीन शख्स आया, अपने कबीले का इंतहाई बदतरीन शख्स आया हुआ है मिलने के लिए. फिर आपने इजाजत दिया. सबसे बुरा आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताना कि सबसे बुरा आदमी आया अपने कबीले का. अच्छा आ जाओ. बैठ गए, गुफ्तगू की बहुत सलीके से, बड़ी मिठास के साथ, बड़े ही प्यारे अंदाज में. जब बंदा चला गया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हमारी माँ, इस उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा खातून, सबसे बड़ी आलिमा खातून. आलिमा इसीलिए थी कि मसला पेश आया तो पूछ लिया करती. अब यहाँ ही मामला देखिए, कहा बहुत बुरा है, बातें बहुत अच्छे से की. जरा ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे? जैसे ही वो शख्स गया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो आप कहते बहुत बदतरीन आदमी है, और वाह माशाअल्लाह बहुत मजे मजे से गुफ्तगू किए मिठास के साथ. अरे ताज्जुब हुआ मुझे, आप कह रहे हैं बहुत बुरा आदमी है और बातें इतनी मीठी मीठी, ऐसा कैसे? यह है अहसन अमल, यह है सबसे खूबसूरत अमल. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आयशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता जिसकी गुफ्तगू की वजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें. क्या हम में ऐसे नहीं हैं? क्या हम में ऐसे लोग नहीं? हम अपनी जात से पूछें कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके सामने हम जाना पसंद नहीं करते. यहाँ तक कि उससे आगे बढ़कर कहूं तो हम जब सफों में खड़े होते हैं तो बाज मर्तबा सफ में कुछ लोग इस मिजाज के होते हैं कि पूरी नमाज में ऐसी हरकतें करते हैं कि आदमी सोचता है दोबारा ऐसे बात नहीं खड़ा होगा. कौन सा हसन अमल?
अल्लाह के सामने खड़े होने पोजीशन ये कि खुजाए जा रहे हैं, पड़ोसी परेशान है, इस तरीके से अपने नाक और मुंह में और कान की तरफ उंगलियां बढ़ा रहे हैं कि आदमी पड़ोस वाला घिन महसूस कर रहा है। कैसे ये अमल आपका अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पसंदीदा होगा कि पड़ोस में खड़ा शख्स आपको पसंद नहीं कर रहा है, उतनी दूर रहने वाला कैसे पसंद कर लेगा? ये अजीब चीज। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज जाहिर कर दी। ये तरीके से गुफ्तगू करें तो अल्लाह ने फरमाया वकुल इबादी यक़ूलु लती हिया अहसन, गुफ्तगू करो तो भी आसान तरीके से करो। एक तरीके से मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, यतीम के माल के करीब मत जाओ मगर आसान तरीके से जाओ। हर मामले में अहसन का लफ्ज़ पाएंगे और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, हर काम में बेहतरीन तरीके से करो, इसलिए कि बेहतरीन तरीके से किए हुए काम करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है। एक मिसाल आपको देते हैं हदीस से। एक हदीस तो आपने बार सुनी होगी, बार बार हदीस जिब्रील जिसका नाम है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मौसाद जो है इसमें भेसे में आए, इंसानी शक्ल में, सफेद कपड़ों में आकर मोहम्मद साहब के पास बैठ गए और पूछा कि इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, और एक सवाल पूछा एहसान किसे कहते हैं, जिस पर हमारी बहस चल रही है, एहसान किसे कहते हैं। ये हदीस आपने सुनी होगी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, एहसान का माना अंत अब्दुल्लाह का अन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो कि गोया तुम खुद अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये एहसास ना हो तो ये एहसास हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, बातें खुद ब खुद काम अच्छा हो जाएगा। टीचर्स पढ़ा रहे हो और अगर हेडमास्टर का उधर से गुजर हो जाए तो क्लास एकदम अटेंशन पोजीशन में जाती बेटा जा रहे, उस्ताद भी दुरुस्त, बच्चे भी दुरुस्त, किसी को गलती हो पकड़ लिया तो मसला है। क्यों? एहसास ये कि मुझे देख रहा, इतने एहसास की बुनियाद पर दुरुस्त हो जाता है मामला। तो अगर ये एहसास हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं खुद अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, कितना अच्छा हो जाएगा अमल। अच्छा होने के एक तरीका, और इसी को एक दूसरी हदीस में हमारे और आपके लिहाज से और ज्यादा वाज़ेह बयान किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मामले में एहसान फर्ज किया, बेहतर ढंग से करना फर्ज किया। हर मामले में, दुनियावी मामला हो आपका तो आप जाने, क्योंकि उसमें आदमी खुद ही अच्छा कर लेता। हर मामले में अल्लाह ने एहसान फर्ज किया। गुफ्तगू करो एहसान के साथ करो, मामला करो एहसान के साथ करो, नमाज पढ़ने आओ एहसान के साथ पढ़ो, वजू करो एहसान के साथ वजू करो। फिर एहसान है क्या? आगे वजाहत मौजूद, आगे मिसाल मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै फइज़ा क़तलतुम फअहसिनुल क़ितला वइज़ा ज़बहतुम फअहसिनुल ज़िबह। जब तुम किसी को कत्ल करो अच्छे से कत्ल करो, एहसान के साथ कत्ल करो, ज़बह करो तो एहसान के साथ ज़बह करो। अब सोचिए जरा, कत्ल करने में एहसान क्या? गर्दन मारी जा रही फिर भी एहसान। यही है इस दिन का इम्तियाज, यही है इस दिन का इम्तियाज कि इंतहाई खतरनाक तरीन मामले में भी ये दिन कहता है एहसान के साथ करो, यहां भी भलाई के साथ करो काम। कत्ल करना, एक शख्स का कत्ल इस्लाम ने लाजिम कर दिया कि नहीं इसको मार देना चाहिए, तो ये इजाजत नहीं देता कि उसके एक एक टुकड़े काटो, ये भी इजाजत नहीं देता कि थोड़ा थोड़ा से सुई चुभो चुभो कर मारो, ये इजाजत नहीं देता कि मॉब लिंचिंग करो, 100 लोग इकट्ठा हो जाओ और पीटो। इजाजत ये है कि गर्दन मार दो, तलवार, धारदार तलवार के साथ करो, अच्छे ढंग से मारना ही अच्छे ढंग से, और अच्छा ढंग ये कि उसका मुसला ना किया जाए, उसके हाथ कान नाक पैर ना काटे, मना कर दिया गया। ये इस्लाम का इम्तियाज। एक तरीके से कहा, और जब ज़बह करो एहसान के साथ ज़बह करो। अब जानवर को ज़बह किया जाता है, ज़बह करने में भी एहसान। क्या एहसान है? कुर्बानी के मौसम में हमेशा सुनते होंगे, छुरी तेज कर दो, बकरे के पैर बांध दो,
छुरी तेज कर लो, किसी बकरे के सामने, किसी जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह मत करो, ये सब एहसान। यानी हर मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान फर्ज किया, हर मामले में, यहाँ तक कि कत्ल और ज़बह में भी एहसान फर्ज किया। इसलिए अल्लाह की जो इबादतें हम और आप करें, जिसमें सबसे बड़ी इबादत तौहीद के बाद, तौहीद तो सबसे बड़ी इबादत है, हम उसको इबादत समझते ही नहीं, इसलिए हम समझते हैं इबादत वो जो हाथ पैर से करें, हाथ पैर से ये काम करते हैं नमाज का, ये भी इबादत है, तौहीद दिल की इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। उसमें एहसान बाकी रहना चाहिए कि तौहीद में जर्रा बराबर भी किसी किस्म की खराबी ना आने पाए। तौहीद यानी मांगेंगे तो सिर्फ अल्लाह से, कभी इधर उधर तवज्जो नहीं करेंगे, खौफ होगा तो सिर्फ अल्लाह का, मा फौकल असबाब तरीके से। हाँ, वरना लोग यहाँ धोखा बोल देते हैं। मा फौकल असबाब जो खौफ है, एक खौफ उस्ताद का होता है, डंडा लेके बैठा है सामने, मैं मौलवी साहब से डरता हूँ, डंडा लिए रहते, अरे वो मा तहतल असबाब, महल्ले का गुंडा है, सारे लोग डरते हैं भाई, कभी भी सता सकता है, वो एक अलग चीज। अल्लाह से जो डर होता है उसकी वजूहात अलग। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो डर है, वो डर, उस किस्म का डर किसी शख्स के मुतालिक नहीं पैदा होना चाहिए। अल्लाह से जो उम्मीद लगाई जाती है, वो उम्मीद किसी और से नहीं पैदा होनी चाहिए। तौहीद बहुत खालिस होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है नमाज, बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से, कम पढ़ो कोई हरज नहीं, जितनी पढ़ सकते हो उतनी ही पढ़ो रोज, ज्यादा मत करो। इसलिए कि हदीस में यह अल्फाज भी है कि तुम इबादत में इतनी ज्यादती मत करो कि थक जाओ, इसलिए कि तुम थक जाओगे, अल्लाह थकेगा नहीं। उतनी ही करो जितनी रोज कर सकते हो और अच्छे ढंग से। हदीस सुनी, एक सहाबी है, 12 सुने होंगे उसको, उस हदीस का नाम है हदीस मुसीब सलात, बहुत मशहूर हदीस है नमाज के सिलसिले में। एक सहाबी आए, मस्जिद में दाखिल हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, ठिकाना ही वही, साहबे इकराम और कुछ बैठे हुए थे साथ में। दाखिल हुए, सलाम किया, मस्जिद में दाखिल हुए, 2 रकात नमाज पढ़ी और वापस हुए, वापस करके सलाम करके जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसल दी फैन कलम फसल, वापस जाओ, फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी। नुक्ता याद रखिए, मस्जिद में कोई भी शख्स कितना भी अहम बैठा हुआ, पहला काम नमाज है। हदीस में अल्फाज है, इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता यरका रकातैन, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो, बैठे नहीं यहाँ तक कि 2 रकात पढ़े। अल्लाह के घर में आए हो, पहले बंदगी का इकरार करो। अल्लाह के घर में आए हो, पहले बंदगी का इकरार करो, पहले सर झुका के अपनी बंदगी का इजहार करो कि रब तेरे दरबार में आया हूं, बंदा हूं मैं तेरा। उसके बाद बैठो। साहबी आए, नमाज पढ़ी, वापस जाने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाओ फिर से नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ी ही नहीं। क्या ख्याल है, अभी मैंने खुद ही बयान किया, 2 रकात पढ़ी हूं। हदीस में क्या कहा गया, नहीं पढ़ी। क्यों? पढ़ने वाले को कहा जा रहा नहीं पढ़ी, मकसद क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि नहीं पढ़ी? पढ़ने के बावजूद भी कहा जा रहा है नहीं पढ़ी। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी नमाज में एहसान का ख्याल नहीं किया, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा था, इत्मीनान से नहीं पढ़ा था। हालांकि बड़े खुलूस से पढ़ रहे थे, बहुत खुलूस से पढ़ रहे थे। खुलूस ना होता तो काहे को पढ़ते, जरूरत क्या थी, वो महफिल में बैठ जाते। बड़े खुलूस से पढ़ी, इत्मीनान नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो चीज पेश करनी है कितनी प्यारी होनी चाहिए, पैसा नहीं था। इसलिए आपने दोबारा लौटा दिया, फिर से पढ़, फिर गए, फिर पढ़ी, फिर लौटे, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अल्फाज के फसल्ली फइन्ना कलम तसल्ली, 3 मरतबा लौटाया और तीनों मरतबा साहबी गए, पढ़ के आए। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो साहबी ने कहा, अल्लाह के रसूल साहब, इससे अच्छी मुझे नमाज नहीं आती, सिखा दीजिए, इससे अच्छी नमाज नहीं आती, मुझे सिखा दीजिए। मालूम क्या हुआ, हमें से कोई कह सकता है मोदी साहब है क्या, बहुत अच्छा पढ़ना जानते हो, नहीं जानते, तो फिर मोदी साहब के पास जाओ, सीखो। कहा ना, साहबी ने सिखाई, नहीं जानता हूं तो सिखाइए। तो हम नहीं जानते तो हम भी सीखें। दुनिया के हर काम सीख सकते, लेकिन जहां दीन का काम आए, दीन का मामला का, फुर्सत कहाँ है साहब? जिसके लिए पैदा किए गए उसी के लिए फुर्सत नहीं। अब जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है उसके लिए बहुत मसरूफ।
रोजी की जिम्मेदारी किसके हाथ में? मेरे, आपके, किसके हाथ में? हमारे आपके हाथ में होता तो हम सबसे बड़े आदमी, बिल्कुल कमी नहीं होती। मेरे हाथ में हो जाए तो मालेगांव सबसे बड़ा अमीर आदमी वही बनूंगा। किसके हाथ में नहीं है? आपके हाथ में हो जाए तो आप क्या कमतर कमाएंगे? हम में से हर शख्स, कौन सा शख्स ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा कमाओ? लेकिन नहीं, जितनी तकदीर में लिखी उतनी मिलने वाली है। 100 रुपए लिखे 100 ही मिलेंगे, 1000 लिखे 1000, लाख लिखा है लाख मिलेगा, करोड़ लिखा है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपको मिल के रहेगा। चाहे जहां से मिले वो मिल के रहेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी आपके जिम्मे मेहनत करना है, और मेहनत भी अल्लाह की इबादतों के बाद करना है, इबादत छोड़कर नहीं करना। लेकिन उसके लिए बहुत फिक्र, और जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया, इसलिए पैदा किया भी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून। बार बार सुनते होंगे, आयत याद हो गई माशाअल्लाह, लेकिन वो शायद यहाँ नहीं घुसती। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत, और उस इबादत में सीखने के लिए वक्त नहीं। साहबी ने कहा अल्लाह रसूल आप सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें सिखाया कि जब नमाज के लिए खड़े हो, इत्मीनान के साथ खड़े हो, इत्मीनान के साथ रुकू करो, इत्मीनान के साथ सजदा करो, इत्मीनान के साथ क़याम करो। मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया। क्यों? ताकि इंसान सीख ले कि इत्मीनान के साथ काम करना चाहिए, वरना अल्लाह का एक हुक्म होता कुल हो जाता। मगर इंसानों को सिखाने के लिए इत्मीनान के साथ करो। अपनी 2 रकात की नमाज पढ़नी, इत्मीनान के साथ करो, 1 मिनट में मत मारो, क्योंकि पेश उसे करना है जो इस कायनात का सबसे ज्यादा पाकीज़ा, सबसे ज्यादा अहसन चीजों को कबूल करने वाला अल्लाह को पेश करना है। अल्लाह की अहमियत और हैसियत अगर जान लें तो हम अपनी नमाजों को इंतहाई खूबसूरत बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए चाहिए कि हम अपनी नमाजों को इंतहाई खूबसूरत बनाएं। इसीलिए एक हदीस और जो लाजमी है सुन लेना इस सिलसिले में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रजुला लयंसरिफु मा कुतिबा लहु इल्ला उशूर। लंबी रिवायत, मैं सिर्फ उसका उर्दू तर्जुमा आपको सुना देता हूँ कि आदमी अपनी नमाज से पलटता है तो कभी पोजीशन ये होती है कि नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा पाया, कभी 9वां, कभी 8वां, कभी 7वां, कभी 6ठा, और कभी 5वां, चौथा, तीसरा और दूसरा आधा पाता। और अगर कभी कभी बेहतर पढ़ा तो मुकम्मल पाता। अब मुकम्मल में कितना? 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना और उससे भी ज्यादा पाता। लेकिन कभी 10वां पा जाए तो हमको 100 रुपया मिले और उसके बाद जब मार्केट में लेके जाए अगर हिसाब 10 रुपये में चलेगा, पोजीशन क्या बनेगी हमारी आप। इसलिए नमाज पढ़ें, एहसान के साथ पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें अपने तमाम अमाल को बेहतर ढंग से करने की तौफीक इनायत फरमाए, अच्छे ढंग से करने की तौफीक इनायत फरमाए, ऐसे तरीक़ों से इबादतें करने की तौफीक इनायत फरमाए जो तरीक़े अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद हों। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।